Hello, dear students. Welcome to the class today. We are doing political science, as you all know. The last two videos that you have seen, we are doing chapter 4, political science. Okay, and the name of the chapter is Growing Up as Boys and Girls. So, a lot of interesting things we have discussed in this chapter, children, and I have tried to explain many things in the form of stories, and you have come to know about certain realities that are there in our lives, in our daily lives. Okay, as boys and as girls, what are your experiences? We have talked about that, we discussed about that. So you know that if you are a boy, what kind of a behavior you have to show. If you are a girl, then what is expected from you. Boys है, बाहर जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे एंड काम करके पैसे कमा के लाएंगे. एंड women, girls who are there will grow up as good wives and will be spending and will be looking after household things, children, and doing something inside the house. It is expected. गर्ल्स का बर्थडे होता है, डॉल्स लेके आते हैं लोग. बॉयज का बर्थडे होता है, एरोप्लेन लेके आते हैं गिफ्ट्स के लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल. ओके, सो इन गिफ्ट्स, थ्रू गिफ्ट्स वी कम टू नो बॉयज एंड गर्ल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाउ दे आर टू बी ट्रीटेड, what are the things that are expected out of them. Got it? तो आइडेंटिटी है, गर्ल है एंड बॉय है. तो गर्ल है, what all things are necessary for the girl, and boy है तो what all things are necessary for the boy. So the society where we have grown up, जहां पे हम बड़े हो रहे हैं, जहां से हम सारी चीजें सीख रहे हैं, the things where we are understanding everything and we are getting all our education, वहां पे हमको कैसे रहना है, क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस. आई टोल्ड यू अबाउट 2 स्टोरीज. एक तो हमने स्टोरी डिस्कस की, वन स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस्ड वाज अबाउट समोआ एंड द अदर स्टोरी वाज अबाउट मध्य प्रदेश. गॉट इट? सो दोनों जगह पे हमने वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट एनीथिंग डिफरेंट. समोआ, वी डिस्कस्ड द बॉयज एंड द गर्ल्स हु आर लिविंग इन समोआ, हाउ दे आर ब्रॉट अप at a very tender age. मतलब try to understand that Samoa is a small island country, Samoan island country that is there. Boys and girls are treated equally. Equally in the sense कि ऐसा कुछ नहीं है कि boys यही काम करेंगे, girls यही काम करेंगे. फिशिंग के लिए बॉयज भी जा रहे हैं, फिशिंग के लिए गर्ल्स भी जा रही हैं, मछली पकड़ने के लिए. तो दैट इज देयर. एंड इन अ वेरी स्मॉल एज द बॉयज नो what is their responsibility as well as the girls know what is their duty. So this is how the things become clear and it is very clearly understood. तो अगर मैं आपको कहूं that would you like to go and stay in Samoa, क्या आपको अगर ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पे कोई सेग्रीगेशन नहीं है, there is no segregation between girls and boys, will you go? Think about it. I'm just giving this I'm just sending this question to you. Later on when we meet, when our online classes will start, then we will be having a discussion on this, that if I send you to a Samoan island, would you like to stay there where there is no segregation between boys and girls? Got it? So a nice thing that we have understood, इसको ये समझने वाली बात है. And we have also learned many things. काफी सारी चीजें हमने सीखी through these 2 examples. And most important thing is that कि when the girls and the boys are treated equally, तो they are free minded. कोई टेंशन नहीं होती है. अदरवाइज हमेशा सोचते रहते हैं
लड़की क्यों हो गए, लड़के की तरह होना चाहिए था, एंड दीज थिंग्स कीप कमिंग. लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. Are you getting my point, children? So we have to see that equality should be there. पहले तो हमने examples discuss किए. By the age of 14-15, the girls and boys in Samoa are independent. They are not dependent on anyone. They carry on their lives in a very simple manner, in whatever way they want. Got it? Now what happens when So children, we just now discussed about the example of Samoa. The next example that we have discussed was the boys and girls in MP, Madhya Pradesh. वहां पे we have discussed about a situation where the boys and girls are going to school. Okay. We have to understand कि 6th onwards boys and girls are going to separate schools. मतलब बॉयज के लिए अलग स्कूल है, गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेग्रीगेशन यहीं पे शुरू हो गया. ओके, द सेग्रीगेशन हैज स्टार्टेड एंड द बॉयज स्कूल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गर्ल्स स्कूल. हाउ इट इज डिफरेंट? बॉयज स्कूल में प्ले ग्राउंड है, द फील्ड्स आर देयर, द बॉयज कैन गो एनीवेयर वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. गर्ल्स का क्या है? बिल्कुल आई मीन इट इज अ वेरी एनक्लोज्ड प्लेस जहां पे गर्ल्स आर केप्ट इन अ वेरी प्रोटेक्टेड मैनर एंड टोटल सेक्लूजन, एकदम अलग से रखा जाता है गर्ल्स को. दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स अप विथ एनीवन when they are there. जब स्कूल में रहती हैं, when the girls are there in the school, तो they are overprotected. I mean overprotected at all the places. Boys school is there. वहां पे आंगन नहीं है. गर्ल्स स्कूल में आंगन है, where the girls will sit और सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इस तरह की चीजें. It is said, it is imagined, it is thought that girls cannot play football and girls are not allowed to go outside and do whatever they want. Got it? Segregation. अलग देखो ट्रीटमेंट. बॉयज आर देयर. आप देखोगे बॉयज क्या होता है कि साइकिल पे जा रहे हैं तो साइकिल पे ही उछलने लग गए, करतब दिखाने लग गए, और दे आर जस्ट यूजिंग द स्ट्रीट्स, तेजी से साइकिल चला रहे हैं. They are doing something that is, and girls will walk slowly, they will walk in groups, talk slowly, all these things are there. Street उनके लिए क्या है? सड़क पे जब लड़कियां चल रही हैं तो इसका मतलब है they will go straight home. घर जाने की जल्दी है उनको, और घर जाने का ही वो रास्ता है. तो girls always went in groups. हमेशा गर्ल्स को ग्रुप में जाना है, because they also carried fears. किस चीज का डर? देखो, गर्ल्स when are walking on the street, they are scared of what? कहीं कोई उनको चिढ़ा ना दे, कहीं कोई उनको अटैक ना कर दे, कहीं कोई उनको कोई बुरी बात ना बोल दे, कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे. These things are there. I mean, देखो, we are talking about boys and girls, so we need to understand all the societies. Okay, तो जैसे girls and boys are there, when you make a drawing, तो आप गर्ल्स बना रहे हो, you think of reasons why there are few women and girls in the neighborhood, streets, parks, market में भी गर्ल्स आपको कम मिलेंगी. बहुत रात में तो यू विल हार्डली फाइंड गर्ल्स. इन द स्मॉल सिटीज, बिग सिटीज में तो नाउ गर्ल्स आर मूविंग आउट, वर्किंग, इंटरेक्टिंग विद द पीपल, हर तरह का काम लड़कियां कर रही हैं. बट दिस इज समवेयर मिसिंग इन द सिटी एरियाज. गॉट इट? तो गांव में जो काम हो रहा है, दिस इज समवेयर मिसिंग इन द रूरल एरियाज. अर्बन एरियाज में आपको लड़कियां घूमती फिरती नजर आएंगी, इंटरेक्ट करेंगी, बातें करेंगी. तो गर्ल्स एंड बॉयज आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज. डू यू थिंक व्हाई दे आर डूइंग सो? ऐसा क्यों कर रहे हैं?
कि गर्ल्स ही ये काम करेंगी, बॉयज ही ये काम करेंगी। तो हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू एग्जाम्पल्स, एक तो समोआ, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, so when we are discussing these examples we need to understand कि what is so unique about the boys and the girls. Got it? अलग अलग segregate करके ही इनको क्यों रखा जाता है, why they are kept in a segregated manner. एक तो ये हमको समझना है। दूसरा societies that are there, मतलब हमारे आसपास का जो कल्चर है, clear distinction is there between boys and girls, समझ में आ जाता है कि what kind of a treatment would be given to boys and then the girls, how the girls will be treated differently from the boys. So I just gave you one example of बर्थडे होता है तो गर्ल्स का बर्थडे है तो डॉल से ही गर्ल्स खेलेंगी, बॉयज का बर्थडे है तो बॉयज हैं तो एरोप्लेन से ही खेलेंगे, टॉय वाला एरोप्लेन ऑफ कोर्स। ओके, सो गर्ल्स को क्या करना है, कैसे है, what kind of a behavior is expected from the girls. बॉयज के लिए इतना कोई नहीं सोचता, बॉयज जोर से बातें कर रहे हैं और दे आर टॉकिंग ऑन इन अ वेरी लाउड मैनर, shouting, screaming, jumping. Nobody will say the boys क्या कर रहे हो, ठीक से रहो। But if the girls are doing it, तो somewhere ये होता है। अभी क्या है कि थोड़ा सा lot of changes are there. I am not talking about your house. I am not talking about houses in general. But somewhere these things happen. कभी कभी ये होता है। Okay? तो आप घर में भी देखोगे मम्मी क्या काम कर रही है, पापा क्या काम कर रहे हैं। The work that is assigned for papa and the work that is assigned for mummy. Got it? अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके से करना है। इसमें what we need to understand, जिस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रही हूं, that the role of mother and father, role of mother and father, ठीक है। मदर एंड फादर यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज हु फर्दर ग्रो इनटू मेल एंड फीमेल। मदर फादर नहीं, मदर फादर भी बनते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। गर्ल्स विल बिकम फीमेल, बड़े हो जाएंगे तो उनको फिर बड़े हो जाएंगे, अभी क्या मेरे को गर्ल कहोगे? नो, यू विल नॉट कॉल मी गर्ल, यू विल कॉल मी अ फीमेल। Grown up girls are called as female and grown up boys are called as male. Got it? So difference that is there, work done by men and women is clearly segregated. लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा समझने वाली है, we need to really understand that male members who are going outside and working, ओके, क्या सिर्फ वही काम कर रहे हैं? मदर्स हु आर स्टेइंग बैक होम, कुकिंग फूड, लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड डूइंग स्मॉल जॉब्स, घर का जो थोड़ा बहुत काम है वो कर रही हैं। आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रही हैं ठीक से? ओके, आर दे, डू यू रियली थिंक दे आर नॉट वर्किंग? One example was there, हमने किसका एग्जाम्पल देखा था? हमने we have discussed about the example of Harmeet's mother, ठीक है। Harmeet's mother, always Harmeet's mother के बारे में बात हमने की। Then Harsharan, Sonali, all these kids are there. कुछ बच्चे हैं जिनकी मम्मी बाहर जाके काम करती हैं, कुछ बच्चे हैं जिनकी मम्मियां जो है वो सिर्फ घर पे, दे आर हाउस वाइफ्स। ओके, सम ऑफ द लेडीज आर देयर हु आर वर्किंग आउटसाइड एज वर्किंग विमेन एंड सम विमेन आर देयर हु आर ओनली हाउस वाइफ्स वर्किंग एज मदर्स, वर्किंग एज लुकिंग आफ्टर द किड्स, लुकिंग आफ्टर द हाउस। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल देखा, द एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन, अगर मदर्स स्ट्राइक पे चले जाएं, इफ दे डोंट वर्क फॉर अ डे, आपने देखा हरमीत का घर कैसा हो गया था। ओके, सो
the mother who was working, she said that I am on a strike now. तो the father understood. He said कि अरे अरे then तो you will not make tea also. वो बाहर से आते हैं, फिर वो कहते हैं कि please give me some tea. तो that day he said you won't be making tea because you are on strike. Then it was not as such a strike, ऐसा कुछ strike वाली बात नहीं थी, but she said, जब ये बात हो रही थी कि आप तो घर पे रहते हो, आप क्या काम करते हो, मम्मी what work do you do when you stay back home? Then she says कि okay then I will not work tomorrow. एक दिन काम नहीं करती हूँ. फिर देखो क्या अभी क्या क्या प्रॉब्लम हुई. Just see what all problems the house members felt. बच्चों को स्कूल जाने बस छूट गई. The father could not get up early. The children were not ready to go to school. I mean ready late हो गया, बस छूट गई, पिताजी को छोड़ने के लिए जाना पड़ा. The father has to go to drop them at school. Lunch box was not ready, so they have to eat from the canteen. Okay, भूखा थोड़ी रहेंगे. They have to eat from the canteen. And then another thing that is there कि of course next morning the children were very happy. They thought कि हाँ मम्मी तो काम नहीं करेंगी, अभी तो बॉल ऑफ फ्रीडम है, जो मन में आएगा वो करेंगे, जैसे मन आएगा वैसे रहेंगे. But then when they saw the whole situation and the lady who was working in their house, क्या नाम था, what was the name, मंगला नाम था, yes. तो she was also on leave. वो भी छुट्टी लेके चली गई थी. तो you can understand that when the housemaid has also not come, मतलब जो घर में काम करती है वो भी जब नहीं आई है, तो how did the lady manage the complete things? Because when you go home, I was telling this in the story also, when you go home तो आपको लगता है हो कोई तो काम नहीं है, मम्मी कितना आराम कर रही होंगी, माय गॉड. बट देन बर्तन साफ हैं, खाना बना मिलता है आपको, योर क्लोथ्स आर वॉश्ड, धुल के आपकी अलमारी में सजा के रखा हुआ है, योर बेड इज डन, आप किताब कॉपी फेंक के स्कूल चले गए हो, यू हैव नॉट डन योर रूम, द मदर इज डूइंग इट. ये सब चीजें दिखती नहीं है. एंड देन द सोनाली सेज कि क्या काम करते हो आप घर पे, घर ही पे तो रहते हो. ओके, एंड देन all these things she is managing the household work plus suddenly some guest come. कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं. तो अभी सोचो घर का काम भी करना है और जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत भी करना है. ओके, they are also to be looked after. So these all things that we have discussed, I discussed it in the form of story. इसमें बोर्ड में लिखने वाली कोई चीज नहीं थी. So I thought that let me talk to you in the form of story. I have done that. I hope you all have liked it. Got it? To understand the life's reality, कुछ जिंदगी की सच्चाइयों को समझना, उसको महसूस करना बहुत जरूरी होता है. Until and unless you do that, you don't realize कि किस हद तक की परेशानी हो सकती है. तो ये सब we have done all these discussions to make you understand one thing. And what is that one thing? Valuing housework. घर के काम को आसान मत समझो. Don't think that the mother is staying back home तो वो सारा दिन सोती होंगी. No, my dear children, that's not the reality. The reality is truly, very shocking. You have to change your thought process. You cannot say that मम्मी दिन भर घर पे हैं तो वो सो रही होंगी. No, my dear children, it doesn't happen like that. Got it? She does lot of work. तो हरमीत्स फैमिली जो है ना, शी डिड नॉट थिंक, क्योंकि वो जाके उसने कहा अपने मम्मी से कि हरमीत की मम्मी को देखो हमेशा आती हैं वो पिकनिक पे, आप तो बाहर काम करने जाते हो.
तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो काम करती नहीं है, घर घर पे रहती है ना, इसीलिए आ जाते हैं। अच्छा, तो दे सेड कि जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज द रियल वर्क। इमेजिन if she is not preparing the food for the kids, the tiffin for the kids, she is not maintaining the house, she doesn't wash the cloth, she doesn't wipe the floor, झाड़ू पोछा अगर नहीं करती हैं, कैसा घर लगेगा? तो वी शुड अंडरस्टैंड कि जिस काम को हम काम नहीं समझते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। ठीक है, सबसे जरूरी काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एंड वी डोंट रियलाइज इट। और जब तक रियलाइज करते हैं तब तक बहुत लेट हो जाती है। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट इट इज क्वाइट लेट, वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट रियलाइज। तो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी, ऐसा नहीं इट इज ओनली इन इंडिया, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क, केयर गिविंग टास्क, देखो इनका काम कम नहीं होता है। द वैल्यूइंग हाउस वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है केयर गिविंग, टू लुक आफ्टर, सबकी देखभाल करनी है ना, केयर। हाउ टू गिव केयर टू द अदर्स, लोगों को किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन। एंड अगर घर में दादा दादी हैं तो उनकी देखभाल अलग से करनी। एवरीबडी गोज, ठीक है, सब लोग चले गए, नाउ दादा दादी आर बैक होम, हु विल लुक आफ्टर देम? खाना देना है, चाय देना है, नहलाना है, कपड़े धोना है, सारी चीजें उनका भी मैनेज करना है। ओके, एंड कितनी बार ऐसा होता है कि देयर इज सम सिक मेंबर इन द फैमिली, बीमार आदमी, गॉट इट, सब दादाजी की तबीयत खराब हो गई, एक्स्ट्रा केयर, टाइम पर दवाई देनी है। ओके, एंड ओल्ड पीपल आर अनेबल टू डू द वर्क ऑन देयर ओन, अपना काम वो खुद नहीं कर पाएंगे। सो सम रियल प्रॉपर केयर इज नीडेड फॉर देम। सो द वर्क दैट विमेन डू विद इन द होम, मोस्ट ऑफ द टाइम वी से घर में रहते हैं क्या काम करते हैं? वॉट इज द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय स्टेइंग होम? So stay back home and just check and just see what is the work that is being done by the women. Okay? It is also thought, कितनी बार ना assume हम करते हैं, हम सोचते हैं that it is something that comes, मतलब ladies हैं, घर पे हैं तो करेंगी ही करेंगी, ठीक है? If the women are staying back home and doing all this work, तो समटाइम्स वी विल फाइंड द एल्डरली लेडी सेइंग, अरे वो तो उसका काम है, वो करेगी ही करेगी, घर साफ करके रखना है, बर्तन धोना है, गॉट इट, खाना बनाना है, ये सब तो उसका काम है, उसको करना ही है। ओके, एंड आर वी पेइंग सैलरी टू हर? क्या हम उनको इस चीजों के पैसे देते हैं? डू वी गिव मनी? डू वी पे देम? नो, वी डोंट डू इट। एंड द सोसाइटी devalues दिस वर्क, इस काम का कोई कीमत ही नहीं है। ओके, द सोसाइटी इज devaluing दिस वर्क, केयर गिविंग का कोई वैल्यू नहीं समझा जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस precious work that the lady is doing. Got it? So society is not giving value to the work. They are not being paid. That doesn't mean कि they are not working. Women are not working. Same thing is there with the, एक तो हो गया valuing the housework which is being done by the women. Another thing that is important is lives of domestic workers. Lives of domestic workers. What do you mean by domestic workers? Yes, the maids who are coming to work in house, वो जो maids आती है ना, कितनी बार मम्मी, I mean जो जिनको मतलब we call them maids, दाई, इस तरह से कहते हैं। हरमीत's mother, हमने अभी जो कहानी देखी, the story that we discussed right now, that what is the work that the women are doing,
Harmeet's mother was not the only one who did the housework. खाली वही घर का काम नहीं कर रही है, lot of work was done by मंगला. मंगला जो अब घर में कोई आती है ना, आपके भी घर में कोई ना कोई आता होगा, झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा कुछ काम करने के लिए, तो कुछ ना कुछ काम डोमेस्टिक हेल्पर जो आके लेडीज को जो हेल्प करती हैं, दे आर द डोमेस्टिक हेल्पर्स. मेनी होम्स, बहुत सारे घरों में, पर्टिकुलरली टाउन्स में, सिटीज में डोमेस्टिक हेल्पर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स को रखा जाता है. डोमेस्टिक मीन्स जो घर का काम करती हैं, जो औरतें, ठीक है, द लेडीज हु वर्क, द वर्कर्स हु आर देयर. क्या क्या काम करती हैं वो? क्लीनिंग, झाड़ू पोछे का काम करेंगे, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धुलने का काम, डिशेस, बर्तन धुलने का काम, कुकिंग, मेनी हाउस होल्ड, द वर्किंग विमेन हु आर देयर, औरतें जाती हैं बाहर काम करने के लिए. द वर्किंग विमेन व्हेन दे गो आउट, दे कम बैक, इतना थक जाते हैं कि खाना बनाने के लिए एनर्जी नहीं रहती, तो एट दैट टाइम दे कीप द कुक्स ऑल्सो. Then they also look after the young children. छोटे बच्चे अगर घर में हैं, that is also looked after by the workers. और the elderly, जो बड़े हैं घर में, उनकी भी देखभाल ये लेडीज करती हैं. तो you can understand all these domestic workers who are there, जो घरों में जो औरतें आके काम करती हैं, they are also women. वो भी तो औरतें हैं, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम नहीं होती होगी? They are women, उनका भी घर है, पति है, बच्चे हैं. तो थिंक अबाउट देयर लाइफ्स. दे आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन इन देयर हाउस. उनके घर पे वो वर्किंग वुमेन है, दो दूसरे के घर में जाके काम करती हैं, लेकिन काम तो करती हैं, अपने घर से तो निकलती हैं. ओके, सो मेनी डोमेस्टिक वर्कर्स हु आर देयर, जो घरों में आके, द लेडीज हु वर्क, दे आर वुमेन. एंड sometimes young boys and girls are also employed to do this work. ये सारा काम करने के लिए ना छोटे छोटे बच्चों को भी रखा जाता है. some places, although it is very inhuman, this is not correct, सही नहीं है ये, but we find at many places that small kids, small children, boys और girls को भी इस तरह के काम के लिए रखा जाता है. एंड सबसे बड़ी चीज ये है that the domestic workers का wages are very low. जो उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, wages are low. The salary that they are getting, it is very low. And domestic work does not have much value. कि घर का ही काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कटका यही तो कर रहे हैं, तो उसमें क्या बहुत बड़ा काम हो रहा है? वैल्यू नहीं है. काम अगर वो नहीं हो तो समझ में आए. एक दिन देखो, अगर घर में बर्तन नहीं धुले, कपड़ा 2 दिन नहीं धुलता है, तो ये लास्ट का मदर, अरे वो मेरा गंजी नहीं दिख रही है, मेरी शर्ट नहीं दिख रही है, क्या मम्मा कहाँ है मेरे कपड़े? देन यू अंडरस्टैंड. तो वेजेस आर लो and domestic workers does not have much value. All these ladies who are coming in your house to do the housework, उनको हम बिल्कुल भी importance नहीं देते. And domestic workers, what happens is they can begin as early as 5 in the morning. कितनी बार तो बहुत सारे घरों में जहां पे the women have to go out to work, वर्किंग वेमेन आर देयर, जो ऑफिस में जाके जो औरतें काम कर रही हैं, वो 5 बजे ही बुला लेती हैं मेड्स को. ओके, जाने के पहले सारा काम खत्म करके जाना इन द मॉर्निंग. एंड बाय द टाइम दे कम बैक, दीज डोमेस्टिक हेल्पर्स हु आर देयर, द लेडीज हु आर वर्किंग इन द हाउस, 9 बज जाता है उनके वापस आने तक. उसके बाद खाना बनाना, खाना खिलाना, बर्तन साफ करके दूसरे दिन की तैयारी करना, तो 12 बज जाते हैं रात में. 5 बजे से उठी हुई औरतें 12 बजे तक काम कर रही हैं. इमेजिन. एंड ऑल द हार्ड वर्क दैट दे आर डूइंग, जितना भी मेहनत वो कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रेस्पेक्ट. काम वाली ही तो है ना, दाई ही तो है, काम ही तो करने आ रही है. डोंट दे डिजर्व ए रेस्पेक्ट? क्या उनको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? पूरी मिलनी चाहिए. तो दिस ऑल थिंग्स दैट आर देयर, ओके, दे डू नॉट शो देम मच रेस्पेक्ट.
एंड एक डोमेस्टिक वर्कर है, आई मीन एक मेड जो है, उसका वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि पहला जो मैंने काम किया, द फर्स्ट जॉब दैट आई हैव डन वाज विद अ रिच फैमिली, बहुत अमीर लोग थे, उनके यहाँ पे मैंने काम किया। एंड दे स्टेड इन अ 3 storied हाउस, 3 मंजिली बिल्डिंग थी उनकी। मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज, मतलब जो मैडम थी, द लेडी ऑफ द हाउस वॉज वेरी स्ट्रेंज, एंड बोले कि हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते रहती थी। शी वुड शाउट फॉर एनी वर्क एंड माई वर्क वॉज इन द किचन, मैं दिन भर खाना बनाती थी। 2 और लड़कियां थी, देयर वर 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। और हम 5 बजे से उठ के सुबह काम करते थे। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। चाय मिलती थी, चाय के साथ 2 सूखी रोटी मिलती थी। व्हाट अ पैथेटिक कंडीशन। एंड शी सेड दैट कितनी बार, बिकॉज आई वॉज डूइंग द कुकिंग, बिकॉज शी वॉज अ कुक, खाना बनाने का काम वो करती थी। तो बोली कि जब खाना बनाती थी फिर मैं सीक्रेटली, मतलब चुपके चुपके जाके उन लड़कियों को कुछ खाने के लिए दे देती थी। तो वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग। वो बोल रहे थे भाई दिन भर काम करेंगे तो हंग्री होंगे ना। तो वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस थ्रू द डे, पूरे दिन काम करके हम बहुत थक जाते थे। मेलानी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस। तो आई यूज टू फील स्केयर्ड, बहुत मुझे डर लगता था ऑफ द मेम साहिब, मतलब द लेडी हु वॉज देयर, बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड। बहुत गुस्सा चढ़ता था, बहुत बेइज्जती होती थी। क्या हम सारा दिन काम नहीं करते थे? नाउ शी इज टेलिंग कि हम सारा दिन काम करते थे। डिडंट वी डिजर्व अ गुड ट्रीटमेंट? क्या हमको अच्छी तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था? तो डोमेस्टिक वर्कर्स की हालत कितनी खराब थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके? जस्ट थिंक ओवर इट, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना। We will be discussing it further in the next class. Got it, children?